افغانستان میں مسلسل خانہ جنگی سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا۔ افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال کو مستحکم کرنا اور انسانی بحران سے بچنا اہم ترجیح ہونی چاہیے۔ عالمی برادری افغان عوام کے ساتھ مثبت انداز میں یکجہتی کا اظہار کرے۔ وزیراعظم عمران خان کی قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے گفتگو۔ پاکستان اور قطر کا افغان عوام کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطر کی جانب سے افغان امن عمل میں پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کا اعتراف۔ امن دشمن عناصر کے مذموم عزائم پورے نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان کے منجمد اثاثوں کو فوری ریلیز کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قطر کے وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ پاکستان کے ساتھ مل کر افغان بھائیوں کی بھرپور مدد کریں گے۔ افغانستان کے لیے بلا مشروط عالمی امداد سے متعلق پاکستان کی تجویز کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی۔ امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم جوزف کا دورہ پاکستان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ۔ افغان عوام کے خوشحال اور مستحکم مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے بھی معاونت جاری رہے گی۔ افغان عبوری حکومت کی تقریب حلف برداری 11 ستمبر کو ہوگی۔ عمائدین، علماء کرام اور دوست ممالک کو دعوت نامے ارسال۔ امریکہ کی جانب سے طالبان قیادت کے بعض وزراء کو بلیک لسٹ میں رکھنا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، عبوری حکومت کا قیام ناگزیر تھا۔ متفقہ اور مشترکہ سیاسی نظام ہی خوشحالی کا ضامن ہے۔ سابق صدر حامد کرزئی، ازبکستان کا طیارے اور ہیلی کاپٹر لے کر فرار ہونے والے تمام پائلٹ اور 46 جہاز عبوری حکومت کو واپس کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان چھوڑ کر جانے والے واپس آ جائیں، حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ قتل و غارت اور کرپشن کا تاریک دور ختم ہو چکا۔ بامیر کے غاروں یا بامیان کے پہاڑوں میں کوئی بھوکا سویا تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ افغان عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ افغانستان میں سابق دور کے کرپٹ وزیروں اور سیاستدانوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد۔ فرار ہونے والے سابق نائب صدر امر اللہ صالح کے گھر سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد۔ طالبان نے ویڈیو جاری کر دی۔ نئی افغان حکومت سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ تعلقات کا دار و مدار ان کے طرز عمل پر ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ افغان حکومت میں مختلف دھڑوں کی نمائندگی ہو۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا افغان ٹی وی کو انٹرویو۔ عبوری افغان حکومت سے تشدد، انتہا پسندی پر قابو پانے اور استحکام میں مدد ملے گی۔ طالبان نے اعلیٰ عہدوں پر مدبر لوگوں کو تعینات کیا ہے۔ افغان عوام بیرونی مداخلت کے بغیر جو فیصلہ کریں گے، سعودی عرب حمایت کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان۔ پاکستان کی جانب سے افغان عوام کے لیے امدادی سامان کی فراہمی۔ پاکستانی سفیر منصور احمد نے امدادی اشیاء افغان حکام کے حوالے کیں۔ امدادی سامان میں آٹا، گھی، ادویات اور دیگر اشیاء شامل۔ زمینی راستوں سے بھی سامان بھجوایا جائے گا۔ پاکستانی سفیر۔ افغانستان کے ساتھ تجارت پاکستانی روپے میں ہوگی۔ رواں سال اقتصادی ترقی کی شرح 4.8% پر لے کر جائیں گے۔ 1.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا موجود ہے جو سیلز ٹیکس دے سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ اے ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ 4 ارکان نے تعیناتی کے حق میں جبکہ 4 ارکان نے خلاف رائے دی۔ حکومت کا انٹرنیٹ ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال یقینی بنانے کا اعلان۔
IV वोटिंग और EVM के मामले पर हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है। कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ खत्म हो जाएगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान। मुल्क में कोरोना के वार, मज़ीद 84 अफराद जान की बाजी हार गए। 4062 नए केसेस रिपोर्ट। SOPs पर अमल दरामद के लिए NCOC की टीम और इस्लामाबाद इंतजामिया का मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। अहकामात के बरक्स खुलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई, जुर्माने आए, कई इदारे सील कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। सैयद अली गिलानी की कब्र पर फातिहा खानी करने पर पाबंदी बरकरार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। अलीम डार और एहसन रजा वनडे मैचेस में अंपायरिंग करेंगे। T20 मैचेस में अलीम डार और एहसन रजा के अलावा आसिफ याकूब, फैसल अफरीदी, राशिद रियाज और शोजब रजा भी फराइज अंजाम देंगे। पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी, जबकि पहला T20 25 सितंबर को लाहौर में शेड्यूल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। स्लैम US ओपन सेमीफाइनल्स लाइनअप मुकम्मल। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव की लास्ट फोर में रसाई। खवातीन में बरतानिया की एमाना दुकानो और यूनान की मारिया सिकारी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं सलमा कौसर। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और मईशत को मुस्तहकम करना इंतहाई जरूरी है। इस्लामाबाद में कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तवील तनाज़े की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। खित्ते के पुरामन हल के लिए महफूज और मुस्तहकम अफगानिस्तान अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की माशी तरक्की और इमदाद फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा किया है और करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में पायदार अमन, इस्तेहकाम और माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने अफगान अमन अमल कतर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों समेत अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। उन्होंने दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर पाकिस्तान के साथ करीबी रवाबित बढ़ाने के अज़्म का भी इआदा किया।
पाकिस्तान और कतर ने अफगानिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक किया है। इस्लामाबाद में कतर के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में पहला चैलेंज इंसानी अलमियत से बचना है। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे रिलीज़ किए जाने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए बिला मशरूत आलमी इमदाद से मुतालिक पाकिस्तान की तजवीज़ की मुकम्मल तायीद करते हैं। तफसील जानते हैं निमरा सुहेल से। वजारत खारजा में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कतरी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान की मदद करना होगी। दुनिया से कहा है कि अगर अफगानिस्तान की फौरी माली मावनत की फराहमी के लिए तैयार नहीं तो कम अज़ कम इन्हें दिवालिया होने से बचाया जाए। To protect the interests of the people of Afghanistan, and for that their safety, their security, stability, and to ensure that this Afghanistan does not become an arena for for proxy wars, and we have to guard and we have to remain cognizant of the spoilers. International community has been very magnanimous, and they should continue to be magnanimous dealing with this issue. First thing that you ought to do is at least release what's theirs, the frozen assets, defreeze them, and let Afghan people utilize their money for their benefit, for their people, and that would be a very, very welcome development. कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए कतर और पाकिस्तान ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। We know that there are a lot to come in Afghanistan, and we encourage Taliban to also to be more inclusive and bring all the Afghans under one umbrella. We want to see a united Afghanistan. We want to see a strong Afghanistan, prosperous and stable, and all of us, we will be supportive for this progress. वज़ारत ख़ारजा में दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और कतर की सोच में मुमासलत है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा तब्दीली के दौरान खाना जंगी का ना होना खुश आइंद है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत साजी के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अफगानों की माली मावनत और इंसानी बुनियादों पर इमदाद को यकीनी बनाने के लिए आगे बढ़े। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतर के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान सियासी मुशावरती मैकेनिज्म को मजीद फाल बनाने पर इत्तफाक किया। इससे पहले कतर के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए वज़ारत ख़ारजा पहुँचे तो वज़ीर ख़ारजा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और कतर अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा करने वाले ममालिक हैं। कतरी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के दौरान अफगानिस्तान में अबूरी सियासी निज़ाम समेत खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म को दोहराया गया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से अमरीकी CIA के डायरेक्टर विलियम जोसेफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में इस बात का भी अयादा किया गया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और अफगान अवाम के खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। विलियम जोसेफ ने इलाकाई अमन और अफगानिस्तान से इनखला के अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। खबर देंगे आपको अफगानिस्तान से, जहां नई हुकूमत की तकरीबी हलफ बर्दारी 11 सितंबर को दारुल हुकूमत काबुल में होगी। इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तालिबान ज़राए के मुताबिक तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान, चीन, तुर्की, रूस, उज़्बेकिस्तान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात
और ईरान को दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं, जबकि अफगानिस्तान भर से सियासी रहनुमा, कबायली अमायदीन और जहीद उलमाए कराम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। तालिबान सराय का कहना है कि चीन की जानिब से अफगानिस्तान के लिए 14 अरब डॉलर की इमदाद का वादा किया गया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने गुज़श्ता रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनका मुल्क अफगानिस्तान के लिए 3 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की खुराक और 30 लाख कोविड वैक्सीन की खुराकें अतिया करेगा। जबकि उज़्बेकिस्तान की हुकूमत ने सुकूत काबुल के वक्त तैयारे और हेलीकॉप्टर लेकर उज़्बेकिस्तान फरार होने वाले तमाम पायलट और 46 जहाज़ तालिबान हुकूमत को वापस करने का फैसला किया है। काबुल के हवाई अड्डे से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होते ही अफगान हुकूमत ने मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद बैनुल-अक़वामी ट्रैफिक के लिए खोल दी है। तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि अमरीका की जानिब से नई अफगान हुकूमत के बाज़ अरकान को ब्लैक लिस्ट में शामिल रखना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान समझती है कि अक़दाम दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान अवाम को गुर्बत और पसमानदगी का सामना है। खुराक और अद्वियात समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की शदीद क़िल्लत है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान अवाम की मदद करे। मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR और आलमी रेड क्रॉस के सरबराहान ने भी अफगानिस्तान में अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद के लिए माली मुआवनत की अपील की है ताकि तालीमी इदारों के तदरीसी अमले और हस्पतालों के तिब्बी अमले की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक को मुतनब्बे किया गया है कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फराहम की जाने वाली इमदाद मुअत्तल रखी तो इलाके में बड़ा इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान कसीरुल कौमी मुल्क है और यहाँ मुतफ़क्का और मुश्तरका सियासी निज़ाम ही तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। एक वफ़द से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन समेत सबको हुकूमत साजी और अवामी खिदमत का हक हासिल है। अबूरी हुकूमत का क़याम नागुज़ीर था। उम्मीद है अब अवाम के मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे। अफगानिस्तान से आज मज़ीद 200 गैर मुल्की खुसूसी जहाज़ के जरिए काबुल से रवाना हो गए। इन अफराद के इनखला के लिए अमरीकी हुकूमत ने अमारात इस्लामी की हुकूमत से खुसूसी दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद का कहना है कि हम खित्ते के मुल्कों और आलमी बरादरी के साथ मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अल जज़ीरा टीवी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद ने कहा कि नई हुकूमत सिफारत खानों, सिफारतकारों और इमदादी कारकुनों की हिफाजत की भी जिम्मेदारी लेती है। अबूरी वज़ीर आज़म ने मुल्क छोड़कर जाने वालों से कहा है कि वो वतन वापस आ जाएं। उनकी हिफाजत की ज़मानत मैं देता हूँ और साबिक मुलाज़मीन भी वापस आकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कत्ल गारत, खून खराबे, इंसानों की तौहीन और बेहुरमती और करप्शन और लूट मार के तारीख दौर का खात्मा हो चुका है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद का कहना था कि आज के बाद अगर पामीर के पहाड़ों या बामियान के गारों में कोई बच्चा भूखा सोया तो अल्लाह के सामने इसके जवाबदेह हम होंगे। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत ने साबिक़ा दौर के करप्ट वज़ीरों और साइंसदानों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं, जबकि पंजशीर से फरार होने वाले साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर में मौजूद लॉकर की वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि अमरुल्लाह सालेह ने कितनी बड़ी तादाद में डॉलर्स छुपा रखे थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के अमरीका और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात का दारोमदार उनके अपने तर्ज़ अमल पर होगा। अफगान टेलीविजन तुलू न्यूज़ के साथ खुसूसी इंटरव्यू में एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि आलमी बरादरी को नई अफगान हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। तालिबान को अमरीका और आलमी बरादरी के साथ अपने वादों को पूरा करना होगा। ये वादे मुल्क में नकलो हरकत की आज़ादी, इंसदाद दहशतगर्दी और अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने की यकीन दहानियों पर मबनी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान ख़वातीन और अक़लियतों समेत अफगान अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा चुके हैं। हम चाहते हैं कि अफगान हुकूमत में मुख्तलिफ धड़ों की नुमाइंदगी हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि साबिक सदर अशरफ गनी के मुल्क से फरार से एक दिन पहले तक उनके टेलीफोन पर राब्ते में था। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि हम अब तक अफगानिस्तान से 6000 अफराद का इनखला मुकम्मल कर चुके हैं।
और अभी खबर यह है कि सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अफगानिस्तान में नई अबूरी हुकूमत के क़याम से मुल्क में तशद्दुद, इंतहा पसंदी पर काबू पाने और इस्तेहकाम हासिल करने में मदद मिलेगी। तालिबान ने आला ओहदों पर मुदब्बिर और तजुर्बाकार लोगों को तैनात किया है। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम अब किसी भी बैरूनी मुदाखलत के बगैर अपने मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से जो इंतखाब करेंगे, सऊदी अरब उसकी हिमायत करेगा। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब मुस्लिम इलाकाई ताकत के उन तरीकों की हिमायत को इंतहाई अहमियत देता है जिनके जरिए अफगानिस्तान अपने मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अफगान अवाम के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान भिजवा दिया गया है। इमदादी सामान की पहली खेप काबुल पहुंच गई है। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने इमदादी अशिया अफगान हुक्काम के हवाले की। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर भिजवाए गए इमदादी सामान में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और भारी मिकदार में अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने कंधार, खौस्त और हेरात में भी फजाई और ज़मीनी रास्तों के जरिए इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। ये सिर्फ पहली फ़्लाइट है, इसके साथ ही एक सिलसिला जो है पाकिस्तान की तरफ से एमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंस का जारी हो गया है। नेक्स्ट फ़्लाइट जो है C-130 एक कल आएगा कंधार के एयरपोर्ट पे लेके, और उससे अगले दिन खोस्त पे एक तैयारा भिजवाया जाएगा इसी किस्म के सामान का। रिलीफ गुड्स भिजवाएंगी जो हवाई रस्तों से यानी स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए भी आएगा, और जो पाकिस्तान के लैंड रूट्स यानी तोरखम और चमन के जरिए भी यहाँ पे लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर इत्तलात की हिदायत की रोशनी में और आलमी जिम्मेदारियों का इदराक करते हुए वज़ारत इत्तलात और नशरियात के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग ने अब तक गैर मुल्की मीडिया को 250 वीज़े और 85 बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए NOCs जारी किए हैं। सिविल और फौजी क़यादत के साथ बातचीत करने और बादज़ां तोरखम बॉर्डर का दौरा करने के लिए यूरोप और भारत के आला सतह मीडिया वफूद को मदऊ किया गया। एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के मुताबिक अफगानिस्तान में मुकीम गैर मुल्की सहाफ़ियों को इनखला या अफगानिस्तान में मीडिया कवरेज के ख्वाहिशमंद सहाफ़ियों को वीज़ा सहूलत फराहम करने के लिए एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग में कायम गैर मुल्की मीडिया के लिए खुसूसी सहूलियाती डेस्क 24 घंटे काम कर रहा है। EP विंग ने वजारत दाखिला के ताबन से अफगानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों के पाकिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर दाखिले को मुमकिन बनाया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों पर अमल दरामद पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में खारजा, दिफा, खजाना, दाखिला और इत्तलात के वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास में कौमी सलामती के मुशीर, आर्मी चीफ, DG ISI, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत सूबों के वज़राए आला और दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। इजलास में अफगान सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात का भी जायजा लिया गया। इजलास में नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के मुख्तसर, दरमियाने और तवील मुद्दती अहदाफ के हुसूल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि हर हदफ के हुसूल के लिए वक्त का तयन किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, जासूसी, अदालती और सिविल इस्लाहात, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने के लिए तेज़ रफ्तार इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास में कौमी दाखिली सलामती सूरत हाल से मुतालिक इत्तलात की फराहमी के लिए नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल के क़याम का फैसला किया गया। इस सेल में दाखिला और इत्तलात की वजारतें कायदाना किरदार अदा करेंगी। इजलास में CPEC पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का भी जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि शरपसंद अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम ने दहशतगर्दी के इफरीत से निपटने में बड़ी कीमत अदा की है। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर के अराजी रिकॉर्ड को जल्द डिजिटल करने की हिदायत की है ताकि कब्जा माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ आम आदमी को रिलीफ दिया जा सके। इस्लामाबाद में तामीराती शोबे से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटलाइज्ड कैडेस्ट्रल
से शहरों की ज़मीन के मौसर इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। इजलास में वजारत हाउसिंग के तहत मुख्तलिफ रहायशी मनसूबों की पेशरफ्त और लाहौर में जारी कैडेस्ट्रल मैपिंग के बारे में ब्रीफ किया गया। ये मनसूबा 15 नवंबर तक मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म को आगाह किया गया कि वजारत हाउसिंग 86,323 हाउसिंग यूनिट्स तामीर कर रही है, जिनकी मजमूई लागत 463 अरब रुपए है। मुख्तलिफ मनसूबों से मुआशी तेजी के साथ 2 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का इयादा किया कि ऊंची इमारतों की शक्ल में उमूदी रिहाइश से बढ़ती हुई आबादी की रिहायशी जरूरियात को पूरा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और चेयरमैन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रोजगार के मौके पैदा करने के लिए गिलगित में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किया जाए। काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अज़रबैजान, थाईलैंड के नामजद सुफरा और नाइजीरिया के नामजद हाई कमिश्नर ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी इस्नाद सिफारिशात पेश की। नामजद सुफरा को ऐवान सदर पहुंचने पर रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नामजद सफीरों ने सदर मुमलिकत से अलहदा मुलाकात की और अपनी असनाद पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान नई जियो इकनॉमिक्स पॉलिसी के तहत दोस्त ममालिक के तिजारत, मईशत, सकाफत और सयाहत के शोबों में ताउन को मजीद वसअत देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मुआशी रवाबित के फरोग से पूरे खित्ते की नमो और समाजी और इक्तसादी तरक्की में मदद मिलेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इदारा जाती सतह के इजलास बाकायदगी से मुनक्किद कराने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उम्मीद जाहिर करते हैं नामजद सफीर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी। रवां साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.8% लेकर जाएंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में सेनेटर तलहा महमूद की सदारत में होने वाले सेनेट की कमेटी बराए ख़ज़ाना को ब्रीफिंग देते हुए कही। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अफरादी क़ुव्वत की फराहमी की सूरत में मुआवनत की जा सकती है। शौकत तरीन ने बताया कि FPR के IT सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे पास 1.5 करोड़ अफराद का डेटा मौजूद है जो सेल्स टैक्स दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में शुरू किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मिडल मैन के किरदार को ख़त्म करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, चेयरमैन FPR और आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात ने फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। उन्होंने कोरोना से मुतासिर इंडस्ट्री की बहाली की कोशिशें मकामी प्रोडक्शन और फिल्म मेकर्स को मराद देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिनेमा इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मकामी वसाइल और मवाद इस्तेमाल करने वालों की हौसला अफजाई के लिए टैक्सों में छूट दी जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की बहाली की तजवीज़ की हिमायत में कहा कि सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली से बासलाहियत नौजवानों के लिए रोज़गार के वसी मौक़े पैदा होंगे और आवाम के लिए तफरीह के रास्ते खुलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। और हुकूमत का इंटरनेट वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि हुकूमत आई वोटिंग और EVM के इस्तेमाल से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है। हुकूमत समझती है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक ना देना तौहीन अदालत होगा। डॉक्टर बाबर अवान का कहना था कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। कानून बन जाए तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ही खत्म हो जाएगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर का कहना था कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन समेत सबके मौक़िफ़ को सुना गया। EVM और आई वोटिंग पर एतराज़ात करने वालों ने धांधली रोकने का कोई तरीका नहीं बताया। अपोजिशन को दावत देते हैं कि वो खुले दिल से EVM को कबूल करें।
और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस आयशा ए मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती का फैसला नहीं हो सका। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने जस्टिस आयशा ए मलिक की तैनाती के हक में, जबकि 4 ने उनके खिलाफ राय दी। जस्टिस आयशा ए मलिक लाहौर हाईकोर्ट में बतौर जज फराइज अंजाम दे रही हैं। मुल्क भर में बढ़ते कोरोना केसेस का जिक्र। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 84 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 6 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद के खिलाफ NCOC के फैसलों के बारे में बता रहे हैं समीउल्लाह। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4062 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 26,497 हो गई है। वबा से बचने के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 6 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। SOPs पर अमल दरामद के लिए NCOC की टीम और इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया। अहकामात के बरक्स खुलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माने भी आयद किए, जबकि कई इदारे सील भी कर दिए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक तालीमी इदारों में असातिज़ा और ट्रांसपोर्ट स्टाफ को 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की हदायत की गई है। अंदरून और बैरून ममालिक हवाई सफर करने वाले 30 सितंबर तक वैक्सीन कराने के पाबंद हैं। शॉपिंग मॉल्स में 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना लाजमी करार दिया गया है। होटल्स और गेस्ट हाउसेज में 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद को ही दाखिले की इजाजत होगी। होटल्स में इंडोर और आउटडोर शादी हॉल्स में तकरीबात में शिरकत करने वाले अफराद के लिए भी 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। 17 साल और इससे जायद उम्र के तालिबे इल्मों को 15 सितंबर तक जुज़वी जबकि 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की हदायत की गई है। ट्रेनों, बसों, वैगनों, कोस्टर्स, टैक्सी, होम डिलीवरी करने के साथ साथ रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉपों, टैक्सी स्टैंड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले अफराद के लिए 15 सितंबर तक जुज़वी जबकि 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना लाजमी होगा। तमाम किस्म के प्राइवेट और पब्लिक डीलिंग के दफातर में काम करने वाले अफराद को 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की हदायत की गई है। रेलवे पर सफर करने वाले और मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वालों के लिए 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना लाजमी करार दिया गया है। नेशनल हाईवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले अफराद को 30 सितंबर तक जुज़वी जबकि 31 अक्टूबर तक लाजमी मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना होगी। कोरोना वबा से बचाव के लिए जहां हम सबको SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है, वहीं तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन कराना भी लाजमी है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना से बचाव के लिए कोटा के तालीमी इदारों में एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। रिपोर्ट करेंगे सरफराज शेख। कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला के तालीमी इदारों में कोरोना SOPs आगाही मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। इस हवाले से तुलबा तालबात के लिए वबा से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। तुलबा के लिए तालीमी इदारों में दाखिले से कबल टेम्परेचर चेकिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क पहनना लाजिम है। यहाँ पर 1800 के करीब बच्चियाँ जो है वो ज़ेर तालीम हैं। सुबह गेट पर ही जो है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। वबा के इन दिनों में ख़वातीन असातिज़ा स्कूल और मामूलात ज़िंदगी से मुताल्लिक मुअस्सर तरबियत के ज़रिए आगही फराहम कर रही हैं, जिससे तुलबा की माशरती ज़िंदगी के नज़्म ज़ब्त और जहन साजी में भी मुआवनत हासिल हो रही है। कोरोना SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदी कर रहे हैं और स्कूल का हमने माहौल जो है वो कोरोना SOPs के तहत ही रखा है। स्कूल में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो हमारा थर्मल गन से पहले टेम्परेचर चेक होता है, फिर हम लोग हैंड वॉश करते हैं। अगर हैंड वॉश नहीं होता है तो मिस हमें सैनिटाइज़र दे देते हैं। तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के तसलसल और तुलबा को वबा से बचाव के लिए असातिज़ा और दिगर अमले की वैक्सीनेशन को भी यकीनी बनाया गया है। कोरोना के तदारुक और वबा के खात्मे के लिए तमाम तालीमी इदारों में मरबूत हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जिससे वबा के खात्मे को तक़वियत मिलेगी। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबा बगैर किसी कर्ज के शुरू किया जा रहा है। 5 प्लॉट्स की नीलामी से पंजाब हुकूमत को 21.5 अरब रुपए की आमदन हुई है।
इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से 1500 अरब रुपए आमदन होगी और 2.5 लाख रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। शहबाज गिल ने कहा कि बुलंद तरीन इमारतों से मुतालिक पॉलिसी का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से वादी कश्मीर और जम्मू के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में खुसूसन बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की वफात के बाद खौफ व दहशत का माहौल कायम करने की शदीद मज़म्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार रियासती अवाम के जज्बे हुर्रियत को कमज़ोर करने के लिए उन्हें जुल्म तशद्दुद और खौफ व दहशत का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि सैयद अली गिलानी के रिश्तेदारों और लोगों को बुजुर्ग रहनुमा की कब्र पर जाने और वहां फातिह खानी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में हुर्रियत रहनुमाओं को बदनाम करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों, गुलाम मीडिया और दहशतगर्द हिंदू तंजीम RSS के कारकुनों की जानिब से शुरू की गई मुहिम की भी मजम्मत की है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा बिलाल गनी लोन ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से बातें करते हुए मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नए चेयरमैन के तौर पर मुसर्रत आलम भट्ट की तकर्रुरी का खैर मकदम किया। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर के लोग गुज़श्ता कई दहाइयों से अपने मादरे वतन की आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक काबिज फौजियों ने आज़ादी के मुतालबे की पादाश में जनवरी 1989 से अब तक 95,860 अफराद को शहीद किया, लेकिन तमाम तरवहशियानात कंडों के बावजूद कश्मीरी अवाम के जज्बे हुर्रियत को दबाया नहीं जा सका। और नाज़रीन, अब गाड़ी के कागजात हों या किसी भी किस्म की दूसरी दस्तावेजात, उनकी तस्दीक अब घर बैठे मुमकिन है। बैंक जाने की जहमत और ना ही नादरा ऑफिस के फेरे, बायोमेट्रिक और वो भी सिर्फ एक मोबाइल टच के जरिए। इस इनकलाबी सहूलत के बारे में देखिए राहील अंसार की ये रिपोर्ट। अब घर बैठे अपने अंगूठे के निशान की तस्दीक करें और अपनी बैंकिंग सहूलियात इस्तेमाल करें। नादरा ने शनाख्ती कार्ड में मोबाइल कैमरा के जरिए उंगलियों के निशानात के हसूल और उनकी तस्दीक में टेक्नोलॉजी को बुरुकार लाते हुए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कॉन्टैक्टलेस बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत मुतारफ करा दी। बायोमेट्रिक सिस्टम का बाकायदा इजरा नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर और चेयरमैन नादरा के दरमियान मुलाकात के मौके पर किया गया। इस जदीद तरीन सहूलत के बाद पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जहां इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का दायरा कार कौमी सतह पर वसी कर दिया गया है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना था कि जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मबनी ये सहूलत पाकिस्तान में शनाख्त के जदीद तरीन निज़ाम और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन डिजिटल पाकिस्तान पर मबनी माहौल कायम करने की एक काविश है, जिससे पाकिस्तान में बैंकारी खिदमात के शोबे में इनकलाब बर्पा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को जल्द बुरुकार लाने से लातादाद नई राहें खुल जाएंगी, मालियाती शोबे को भी बेपनाह फायदा होगा और बैंकों के रोजमर्रा अखराजात कम हो जाएंगे। नादरा की जानिब से कॉन्टैक्टलेस बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत वबाई हालात में वक्त का अहम तरीन तकाजा है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो वफाकी या सूबाई हुकूमत के बारे में सोचना छोड़ दें। आइंदा इलेक्शन में सिंध के अवाम भी उनको मुस्तरद कर देंगे। अपने बयान में वजीर मुमलिकत ने कहा कि बिलावल भुट्टो बताएं कि उनके वालिद पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत कब और कैसे वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को गिरा फरोशों, जखीरा अंदोजों और टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। सिंध में साफ पानी, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की तामीर समेत हर शोबे में वफाकी हुकूमत काम करती नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमतों ने ज़ाती फ़वाइद की खातिर मुल्क को मसाइल से दोचार किया। मौजूदा हुकूमत पहली बार मुल्क और अवाम की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक बार फिर मदरसे के तालिब इल्मों को इकट्ठा करके सियासी जलसे की शक्ल देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान गुज़श्ता 40 साल से हुकूमत में रहे, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम इनकी असलियत जान चुके हैं। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी ने 1,20,000 टन गंदम की खरीदारी के लिए टेंडर की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुतादिद उमूर ज़ेर ग़ौर आए।
इजलास में फौजी ऑयल टर्मिनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए आइंदा 5 साल के लिए निर्खों में नजरसानी की मंजूरी दी गई। कमेटी ने ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजों की मकामी सतह पर तैयारी के लिए खाम माल पर टैक्स छूट की भी मंजूरी दी। गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकिर ने कहा है कि रास्त पेमेंट सिस्टम अक्टूबर में ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे बैंकों से ऑनलाइन अदायगियां हो सकेंगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में बिजनेस सेंटर के इफ्तिताह और हॉक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि स्टेट बैंक ने कोरोना वबा के दौरान कारोबारी बरादरी को 2 ट्रिलियन रुपए का रिलीफ फराहम किया है। आगाह करेंगे आपको स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 228 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,000 की सतह उबूर कर गया। आज 100 इंडेक्स 46,625 पर बंद हुआ। मार्केट में 39 करोड़ 64 लाख 30 हजार से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। 185 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 176 कंपनी शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 24 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। अभी खबर यह है कि वफाकी वजीर तेज सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नई पॉलिसी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्टील मिल्स की हुदूद में 1,500 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तामीर होगी। वफाकी वजीर ने कहा कि कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी और वैल्यू एडेड बरामदात से मुंसलिक सनतों का फरोग तरजीह है। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। एयर चीफ ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा किया। ईरानी सफीर ने पेशावराना महारत और हवाबाजी की सनत में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए पाक फजाइया की काविशों को सराहा। चीनी सिफारत खाने के सियासी और प्रेस शोबे के सरबराह वोंग शिंगजी की सरबराही में वफ्द ने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया। वफ्द को पीटीवी न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों में उमूर की अंजाम दही के बारे में ब्रीफ किया गया। चीनी वफ्द ने टेक्निकल और दीगर उमूर के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफ्द के सरबराह वोंग शिंगजी ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को उजागर किया जा रहा है। I feel very glad to visit PTV, and actually I feel quite impressed by the people here, as well as their professionalism and also the dedications. And I think PTV, especially PTV World, is a good access for us to know the informations around the Pakistan and as well as the world. And we do cherish this good access to the information here, and I'm looking forward that the China should step up our efforts in cooperation with the PTV side as well as the media circles here in Pakistan to promote our bilateral relationship develop further. और नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की मुश्तरका पेशकश ड्रामा सीरियल ज़हीरुद्दीन बाबर की। मुश्तरका काविश के तौर पर प्लान किया जाने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट समझा जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती रवाबत बढ़ाने के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए थे। इस हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान टेलीविजन इंडस्ट्री का मेगा प्रोजेक्ट ज़हीरुद्दीन बाबर शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है, जिसमें मुर्रिखीन, सीनियर ड्रामा राइटर्स, बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इस ग्रुप का काम प्रोजेक्ट के तारीखी पहलुओं को सही मानों में उजागर करना और हकाइक को दुरुस्त तनाजुर में पेश करना है। एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुमताज मुसन्निफ और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद, असगर नदीम सैयद, डॉक्टर महबूब हुसैन, डॉक्टर फौजिया, हासिम हुसैन और एहतशामुद्दीन ने की। इजलास में प्रोजेक्ट के हवाले से अमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान टेलीविजन इससे पहले भी कई तारीखी ड्रामा सीरियल्स पेश कर चुका है, जिन्हें नाजरीन में जबरदस्त पजीराई मिली। उम्मीद है ये मेगा प्रोजेक्ट टेलीविजन इंडस्ट्री में शोहरत की नई बुलंदियों को छुएगा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीडीएम मार्च का ऐलान करके पीछे हट गई। रहीम यार खान के इलाके जमालदीन वाली में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वोट की इज्जत की बात करने वाले वक्त आने पर भाग जाते हैं, अब दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। उनका कहना था कि मुफाहमत ना मुखालिफत ये मुनाफकत है, अपोजिशन है तो अपोजिशन का किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाक बल्कि सूबों में भी हुकूमत बनाएगी। कौमी अवार्ड याफ्ता सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफगान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफजई इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है, वो निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा कल 11 बजे मर्दान काटलिंग एक्सचेंज के इंटरचेंज के करीब खान ज़मीर बांडा में अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने रहीमुल्लाह यूसुफजई के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि रहीमुल्लाह यूसुफजई का इंतकाल सहाफ़त के एक अहद का खात्मा है। अफगानिस्तान और हमारे सरहदी इलाकों के मामलात पर उनकी जो गिरफ्त थी वो शायद ही किसी और का खासा बन सके। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। सबसे पहले आपको बताएं, कराची समेत सूबा सिंध में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में करंट लगने और छत गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसील हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट में। मानसून के दूसरे स्पेल के तहत शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शाहराहों पर पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ा है। गुलशन मेमार, यूनिवर्सिटी रोड, फेडरल बी एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। रात गए गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 200 से ज्यादा फीडर ट्रिप हो गए, जिसके नतीजे में बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। ताहम सुबह 11 बजे तक शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल हो गई। कराची के इलाके MPR कॉलोनी में मकान की छत गिरने से खातून और इनके 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मंगोपीर के इलाके में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। नशेबी इलाकों और गली मोहल्लों में पानी जमा होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। सफाई कोई नहीं करने आता। ये अभी सुबह जो है ना अपनी मदद आप काफी पानी निकाला है, बाकी ये रोडों पे नाले से पानी बाहर निकल रहा था, कोई सुनाई नहीं है। बहरहाल इस पे 2 बूंदाबांदी होती है, ये हाल हो जाता है। यहाँ से लेडीज जाती है, बच्चे जाते हैं, गाड़ियाँ जाती है, हम लोगों को इतनी परेशानी है। ये महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम सिंध के वस्ती और मशरकी इलाकों में मौजूद है, जो अगले 2 रोज तक वक्फे से बारिशें बरसाता रहेगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है।